everyone, and welcome back to Cura Talks, a social initiative Inner She by Cura Diagnostics and Research Center, Bhopal, Madhya Pradesh. We aim to educate as many women and girls as possible about their health and empowering them from within. That's our logo of Inner She, which we are continuing now virtually with Instagram. So, I'm Dr. Soumya Dwivedi, the Chief Radiologist and Director at Cura Diagnostics and Research Center, Bhopal, and I am specialized in women imaging by International Ovarian Tumor Analysis, that is IOTA certification, also a fellow and specialized in pregnancy imaging by Fetal Medicine Foundation, UK. As you all know, हम हर महीने कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रिगार्डिंग विमेन एंड गर्ल्स बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम इनर शी में, और आज हम इसी एक सेंसिटिव इशू को लेके आए हैं, दैट इज ओवेरियन कैंसर. नाउ फ्रेंड्स, ओवेरियन कैंसर इज अ डिजीज which should be talked about, and September is known to be also the ovarian cancer awareness month. Now why are we talking about this ovarian cancer? Because ovarian cancer एक ऐसा डिजीज है जो बहुत लेट प्रेजेंट करता है, मतलब कि एक औरत को उसके सिम्टम्स पता बहुत लेट चलते हैं. उनको बहुत वेग सिम्टम्स रहते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आते, और विमेन बीइंग विमेन, स्पेशली इंडियन विमेन, इग्नोर देयर हेल्थ टू कंप्लीट फुलनेस. सो दे प्रेजेंट टू द डॉक्टर लेट, दे गो टू द डॉक्टर लेट, दे गेट द डायग्नोसिस लेट, एंड इवेंचुअली उनका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए ओवेरियन कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, सो दैट यू नो how you can diagnose ovarian cancer and when is the right time you need to go to your doctor. So आज ये इशू डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनकी बहुत वास्ट नॉलेज है ओवेरियन कैंसर से रिलेशन में. सो फर्स्ट वी हैव डॉक्टर निधि पाठक. शी इज MBBS DNB obstetric and gynecology and she is the consultant at OrthoCare and Nidhi Maternity Care, Bhopal. She has versatile experience in gynecology and is an expert dealing in such patients. Also, we have with us Dr. Shushruta Srivastava. She is also a gynecologist and has earned a fellowship in gyneco-oncology. She has vast experience in treating and managing ovarian cancers and is here to join us for this webinar. Let me just quickly add them to our webinar. Thank you for joining Cura Talk. It's indeed a pleasure to have such expert faculty with us discuss about ovarian cancer. So thank you so much. Thank you to you also. Great. All right. So I have just introduced both the fabulous doctors amongst us. One is Dr. Nidhi Pathak in red and one is Dr. Shushruta. So thank you again for joining our webinar. So doctors, as you know, that Cura Talks is about discussing with our viewers and telling them and making them aware कि क्या इस डिजीज के बारे में वो लोग कर सकते हैं जिसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे वो पता लगा सकते हैं कि ये सही टाइम है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. That something is definitely going wrong. So today we are discussing such a topic जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि ऐसे डिजीज को पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स यूजुअली लेट. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस and we have numerous queries. We usually raise a panel, on Instagram, and we have several questions from the viewers. So I have tried to shortlist a few questions and we're going to discuss the same one by one. So I think without wasting any further time, let me shoot the first question. So the first question goes to Dr. Shushruta. What is the role of ovaries in human body and what is ovarian cancer? देखो, बेसिकली आई थिंक जितने हमारे व्यूअर्स हैं आज की डेट में सबको पता है व्हाट इज ओवरी. इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट बेसिकली द मेन फंक्शन इज इट रिलीजेस द एग, इट हेल्प्स इन द फर्टिलिटी, है ना, एंड इट आल्सो रिलीजेस द फीमेल हार्मोन्स. तो बेसिकली इट इज एन एंडोक्राइन ऑर्गन जो हार्मोन्स रिलीज करता है, इट रिलीजेस द एग दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज ओवेरियन कैंसर? कैंसर क्या है? कोई भी जो नॉर्मल अपने बॉडी सेल्स है जब वो अबनॉर्मली ग्रो करने लग जाए, जो मतलब होता है ना अति का बुरा होता है, सेम थिंग गोज लाइक इन द कैंसर, कि जब वो एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए उनकी, तो इट बिकम्स द कैंसर. एंड ओवरीज में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि
रिप्रोडक्टिव सेल्स वो हैं, जी, फिर उसकी लाइनिंग जो उसकी कवरिंग है वो एक अलग तरह का सेल्स होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स कहलाते हैं। करेक्ट, तो इसी तरह से जब जिस भी सेल का एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो दिस ओके, इज बेसिकली ब्रीफ नॉलेज अबाउट द ओवेरियन कैंसर एंड अकॉर्डिंगली मतलब एज स्पेसिफिक भी होते हैं ये कि ओके, जैसे जर्म सेल्स है वो जनरली यंगर एज में है, राइट, जो एपिथेलियल सेल है वो ओल्डर एज में होंगे, इस तरह से ये ओके. बेसिकली डिफरेंस है। All right, ma'am. Thank you. So, Dr. Nidhi, the next question is for you. What are the risk factors for ovarian cancer, ma'am? हाँ, रिस्क फैक्टर्स दे आर मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि जो रिस्क फैक्टर है, अगर हम कॉज की तरफ जाएं कि क्यों हो रहा है ये, तो बहुत सारी थ्योरीज पॉस्टुलेटेड हैं। तो एक थ्योरी है कि incessant ovulation, that is Right. when there is no rest between the ovulation period of the female से ओव्यूलेशन जो होता है, जैसे डॉक्टर सुश्रुता ने बताया कि हर महीने एक फॉलिकल रिलीज होता है, उसमें से ओवम रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो दैट इज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन अगर लगातार होते जा रहा है किसी महिला के उसमें, तो वो एक रिस्क फैक्टर में आ जाती है। तो अगर हम इसी को लेके चलें, तो अगर कोई नली पेरिस है जिसको एक भी चाइल्ड नहीं हुआ है काफी टाइम तक, तो वो फीमेल क्योंकि ओव्यूलेशन होता जा रहा है, इट इज नॉट फर्टिलाइज, शी इज नॉट अंडरगोइंग प्रेगनेंसी, तो वो ओव्यूलेशन हेल्ड अप नहीं हो रहा। तो ये जो है ये फर्स्ट रिस्क फैक्टर रहता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर उसके बाद अगर हम ओव्यूलेशन के बाद अगर जाएं, तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, एक तरीके से ओव्यूलेशन को रोकता है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है कोई महिला, तो ओव्यूलेशन वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा, इट विल गो ऑन। सो ब्रेस्ट फीडिंग एज सच, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ रिस्क फैक्टर, एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन कन्वर्स इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। फिर इसके अलावा और एक और मेन वो है, दैट इज पेल्विक कंटामिनेशन। तो पेल्विक कंटामिनेशन में पीआईडी आ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस होते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि पेरिनियल एक्सपोजर टू टैल्क, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ओवेरियन कैंसर। और बहुत सारी स्टडीज बताती हैं, जो एचआरटी लेते हैं हम, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मीनोपॉजल के बाद, उसमें अगर ईस्ट्रोजन वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो वो भी एक अलग से रिस्क फैक्टर रहता है। फिर हम बात करें फैमिलियल की, तो 10% ही काउंट होता है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। तो उसमें म्यूटेटेड जीन्स जो रहते हैं, अगर हम कैरी कर रहे हैं अपने जीन्स में अपने मदर फादर या और लेटर क्लोजर रिलेटिव से, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री, तो दैट आल्सो काउंट्स इन द रिस्क फैक्टर। तो मेजर ये रिस्क फैक्टर्स है। और एक और बोलते हैं कि जो हॉर्मोन्स रहते हैं, एफएसएच, एलएच, जो गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं इनको, उसका मिलियो अगर बॉडी में ज्यादा रहे, हमेशा ज्यादा रहे, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है। अब स्टडीज बताती हैं, जो हम इनफर्टिलिटी वाली महिलाओं को जो ड्रग्स देते हैं, पहले वो था कि बहुत स्ट्रांगली रिलेट हो रहे थे कि ओवेरियन कैंसर हो जाता है, बट नाउ द स्टडीज हैव मतलब प्रूव कर दिया है उन लोगों ने कि बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स का, एंड द ड्यूरेशन कि हम कितने दिनों तक दे रहे हैं, इसका भी बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। बट वी स्टिल बी केयरफुल कि हाँ, एक एसोसिएशन है, तो वी हैव टू कीप आवर ट्रीटमेंट गार्डेड। तो कुल मिलाकर ये सारे हैं रिस्क फैक्टर्स मेजर। डॉक्टर निधि, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन ऑन व्हाट यू जस्ट टोल्ड। आपने जैसे बताया फैमिलियल, तो Yes. क्या किसी की फैमिली हिस्ट्री में ओवेरियन कैंसर की जीन्स चले या कोई और कैंसर एक औरत को नहीं। उससे भी रिस्क? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज मतलब ब्रेका जीन, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, BRCA जीन, तो दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। इसके अलावा एक और जीन रहता है, उसमें GI कैंसर्स जैसे कोलॉन कैंसर्स रहेंगे, पैनक्रियाटिक कैंसर्स रहेंगे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो ये भी हेरिडिटरी फॉर्म में हमें दूसरे क्लोज रिलेटिव से हम इनहेरिट कर सकते हैं, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग इनटू द रिस्क कैटेगरी देयर। ओके, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन मैम, क्लोज रिलेटिव्स अगर एक पेशेंट है, उसको क्या समझ आए, उसकी मदर
मौसी, हाउ कैन वी जस्ट टेल देम ब्रीफली हाँ, कैसे, किसको इफेक्ट ये होता है, जिससे हमें पता चले? मदर इज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ओके, ओके, सिस्टर इज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ओके, मौसी, मौसी के बच्चे, ये सारे सेकेंड डिग्री रिलेटिव है। अच्छा, ओके। और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि मेल ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर। हम ओ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि अगर 50 इयर्स से नीचे वाले हैं, देन अगर आपके जैसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, दे आर जी, फॉलिंग इनटू लेस देन 50 इयर्स, और तब उन्होंने कैंसर एनकाउंटर किया है, देन यू आर राइट, फॉलिंग एट अ हायर रिस्क. But राइट, if male breast cancer, then age is no criteria. You are ओके, definitely falling into a higher risk. ओके। सो दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। आई थिंक आप सबको पता रहेगा नाउ हु इज हाई रिस्क एंड लो रिस्क फ्रॉम दिस लिस्ट। So good. Thank you, Dr. Nidhi. Next question I will shoot for Dr. Shushruta. Ma'am, I was asking कि what are the common symptoms of ovarian cancer? एक औरत को कैसे पता चलेगा कि इसकी संभावना है कि उसको ovarian cancer है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ओवेरियन कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता, Okay, अगर देखा जाए तो। जैसे okay, एक पर्टिकुलर चीज जैसे किसी को हो रही है तो वो समझ जाए कि ये ओवेरियन कैंसर के लक्षण है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे कैंसर okay, सर्विक्स की हम बात करें तो उसमें ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी कंप्लेंट्स अर्लियर होती हैं, एंड द फीमेल विल कम टू अस। बट दिस कैंसर इज लाइक कि ये हम इसको ना स्लो किलिंग कैंसर भी कहते हैं। क्यों? okay, क्योंकि बॉडी के अंदर ही अंदर डेवलप होते जाता है, पता नहीं चलता, एंड जनरली द वीमेन प्रेजेंट वेरी लेट, जब वो बहुत ही एडवांस okay, हो चुका होता है ना, तब वो हमारे पास आती है। तो okay, बहुत वेग सिम्टम्स है इसके, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना, वेग काइंड ऑफ जी, पेन, ब्लोटिंग सेंसेशंस, है ना, एंड okay, इस टाइप की चीजें, कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी डिस्टर्बेंस, अगर वो अंदर ही अंदर काफी ग्रो हो गया है तो जनरली यही सारे so सिम्टम्स हैं जो इसकी वजह से आपके पास आ रही है, लेकिन वो बहुत लेट प्रेजेंट होता है। जो मैंने जो जर्म सेल्स जो बताए थे ना, कि जो दूसरी कैटेगरी होती जी, है, उसमें कई बार क्या जी, होता है कि वो क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं, तो they may right, present with menorrhagia, the bleeding complaints and all. So such kind of patient may come with in a early stage. नहीं तो जनरली all right, बहुत लेट विद अ लंप इन द एब्डोमेन, इस तरह से ही आते हैं वो हमारे पास। तो okay, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इस कैंसर के लिए, right. इट्स So अ लेट डिटेक्टिंग कैंसर। that's very important because एक फीमेल को यूजुअली तब पता चलता है कि उसकी साइकिल्स डिस्टर्ब हो रही है या ब्लीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब उन्हें पता चलता है यूजुअली, ओके समथिंग्स रॉन्ग विद माय पेल्विस, आई नीड टू गो टू माय गायनेकोलॉजिस्ट। बट ऐसा इस कैंसर में नहीं होता यूजुअली, आप बोल रहे नहीं हैं। हो पाता है। सो बेसिकली गैस्ट्रिक सिम्टम्स की लिस्ट ज्यादा लंबी लग रही है ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स में। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि मतलब ब्लोटिंग, क्योंकि क्या है, दैट इज किलिंग फ्रॉम इनसाइड, तो ब्लोटिंग हो रही है, भूख राइट, कम लग, जो इन जनरल हर कैंसर में होता है कि दे जनरली लूज द एपेटाइट, राइट, टेकेक्सिक हो जाता है, राइट, तो वो चीजें उसी उन सिम्टम्स से वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। right. So I think it's very important for you to remember this, the list of symptoms, because ये बहुत ही silent, जैसे कि मैंने बताया, slow killing cancer है. So right, स्लो किलिंग। we'll come back to how we can prevent it. So I think the next question which was asked to us a lot is how can we diagnose ovarian cancer? And I would take the opportunity to answer it. First and foremost, family history, जैसे कि डॉक्टर निधि ने बताया, is very very important, and it plays a major role because it has a very strong association with ovarian cancer. जैसे कि मैंने बताया, even male breast carcinomas have a very strong link if it's running in your genes. So family history is one point. Second point is, अगर gynecologist को आपने दिखाया तो वो एक पीवी एग्जामिनेशन से अगर उनको लंप फील होता है या उनको अबनॉर्मल चेंजेस फील होते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके भी आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं, बिकॉज दे कैन रेज अ सस्पिशन कि आपको ओवेरियन कैंसर की चांसेस हैं कि नहीं है, या कोई और डिजीज है कि नहीं है पर से। सो अ पीवी एग्जामिनेशन ऑफ विद अ गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in at that point. Next is if a gynecologist finds a lump,
then you have to be referred for a transvaginal pelvic ultrasound, because that can give you a visualization of what is really happening to your ovaries. Transvaginal is an internal examination जो इंडिया में मैरिड औरतें करा सकती हैं या विद कंसेंट करा सकती हैं, एंड इट गिव्स यू हाई रेजोल्यूशन इमेजेस which is very very useful. And transvaginal is basically सोनोग्राफी आपके बच्चेदानी की, उसमें हम यूट्रस और ओवरीज दोनों को देखते हैं. Then obviously with radiology we need pathology also. So CA-125 comes into a big picture over here, and after that a confirmation biopsy can help you to diagnose an ovarian carcinoma. So these are the points which you can remember. Your gynecologist plays a very very important role, because they can do an examination for you. They can consider your symptoms, whether they're falling in ovarian carcinoma category or not. And then radiology also plays a very important role to define the extent of the lesion, कहाँ तक फैला है, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, whether ये कैंसर है भी कि ये benign disease है, and then obviously pathological and histopathological correlation. So now since we've talked about CA-125, there's a big question. CA-125 क्या है? What is CA-125? So it's basically a blood test of a cancer antigen, and that is done during and after the treatment to see the progress. And especially ये high risk और low risk को divide कर देता है and helps in early detection. So CA-125 does play an important role. So coming to that, now that we've talked about CA-125, Dr. Shushruta, can you tell us, is there any screening tests available for ovarian carcinoma? Like in cervical cancer, हम सबने सुना है pap smear, जो आजकल काफी लोग कराते भी हैं vigilantly. So क्या CA-125 ovarian cancer के लिए भी कोई screening test available है हमारे पास? देखिए, again the same thing. पर से ओवेरियन कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत अच्छे से नहीं है. मतलब जैसे आपने बताया ना कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए अपना पैप स्मीयर है जो हमें रेगुलर बेसिस पे आफ्टर द एज ऑफ 30 एवरी वुमन शुड अंडरगो दैट टेस्ट. Correct. पर सिर्फ फॉर दिस कैंसर देयर इज नो स्क्रीनिंग टेस्ट. अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट इज अवेलेबल. Okay. स्क्रीनिंग इन जनरल हर किसी को हम एडवाइस भी नहीं करते हैं. Okay. मतलब क्योंकि इट्स नॉट अ गुड टेस्ट. The best thing a female can get done is कि मतलब अपने गायनेक के पास जाके अगर उसको कुछ इस तरह के symptoms है तो she can go for a pelvic examination. Okay. And if there is any suspicion कि mass या lump ऐसा कुछ feel हो रहा है, then we will go for the other test. High risk patients, जैसे कि डॉक्टर निधि पाठक ने बताया हमें कि जो कुछ high risk होते हैं उन केसेस में हम स्क्रीनिंग एडवाइस कर सकते हैं. जैसे जो जेनेटिक जिनका म्यूटेशन है, BRCA1 है या फिर HNTCC जो कि उन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर और उन सब का बताया जी. तो फर्स्ट फीमेल्स इट इज एडवाइजेबल कि इवन आफ्टर जिनका हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 30 इवन 35 दे कैन अंडरगो स्क्रीनिंग, जिसमें जो आपने CA-125 एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोला, ये दोनों अलोन CA-125 अगेन इट्स नॉट अ गुड स्क्रीनिंग वन जी. एंड alone transvaginal ultrasound it is a good test. मतलब उसमें काफी अच्छे से हम कैच कर सकते हैं कोई भी छोटा मास जी. but a combination of both is best, more superior. Okay. if we compare दोनों को अलग से देखें और एक कॉम्बिनेशन देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज मोर सुपीरियर. बट जनरली दिस कॉम्बिनेशन टेस्ट इज एडवाइज्ड ओनली इफ यू आर फॉलिंग अंडर एनी हाई रिस्क कैटेगरी. हम रूटीन में हर फीमेल को नहीं बोलेंगे कि गो फॉर अ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड. द बेस्ट व्हाट कैन बी डन इज अ पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर द any kind of mass. Okay, but ma'am, for high risk patients क्या कोई screening protocol है? ये general population के लिए we know now that there is no screening protocol. General population के लिए तो as such नहीं है. Yes, but definitely if you are high risk, you have to undergo the screening method. Okay, so if you are high risk, then at what age, ma'am? आपने 35 years did you say that cutoff should be? अगर जैसे जो recent guidelines वगैरह जैसे BRCA1 है और जैसे HNTCC लिंच सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कोई रिलेटिव है आपका या आपको ही कभी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो फॉर सच फीमेल्स जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं तो 35 to 40 इज द गुड एज जिसमें आपका स्क्रीनिंग चालू कर दिया जाए. ठीक है.
Okay, so that's a very This will good and reduce important point. Yes, yeah. important point to remember. If you are high risk or if you have any history, like ma'am said, then 35 above should be, visited. They should visit a gynecologist and they should undergo screening for ovarian carcinoma. All right, ma'am. Next question goes to Dr. Nidhi. Ma'am ने अभी हमें बताया बारका जीन के बारे में. So, ma'am, can you elaborate a little bit? What is this बारका gene test? हाँ, ये जो ब्रेका जीन है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन. तो दिस इज अ गुड जीन. इट इज लाइक इट इज कैंसर प्रिवेंटिव. इट सप्रेसेस द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. सो इफ इट गेट्स म्यूटेटेड, अगर इसमें गड़बड़ी होती है तब हम इसमें रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं. तो ये ब्रेका जीन मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है. ये बता दिया कि हम क्यों बात कर रहे हैं इसके लिए, एंड बहुत सारा कुछ तो डॉक्टर सुश्रुता ने बता दिया कि किनको हम एडवाइस करेंगे ब्रेका जीन. और इसको अगर पॉजिटिव आता है तो फिर क्या करना चाहिए हमें, मतलब क्या करें. अगर पॉजिटिव आ भी रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. तो ब्रेका जीन बता दिया. ब्रेका जीन के बाद ये रहता है कि जैसे डॉक्टर सुश्रुता ने बताया कि अगर हम हाई रिस्क में फॉल कर रहे हैं तो हम 20 to 40% चांसेस हमारी इंक्रीज हो जाती है वी फॉल इनटू ब्रेका 1 पॉजिटिव से. ब्रेका 2 बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता सीए ओवरी में, लेकिन रहता है. लेकिन अगर 1 पॉजिटिव है तो 20 to 40% रिस्क हमारी बढ़ जाती है. तो अगर कोई हमारे रिलेटिव्स हैं, वो अगर क्लोज रिलेटिव्स जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, वो अगर है सीए ओवरी, सीए ब्रेस्ट या कोई गैस्ट्रिक कैंसर, तो फिर हम उनको जेनेटिक टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे. फर्स्ट चीज में एक और चीज ये बताती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है नहीं हर सिटी में, एंड इट इज कॉस्टिंग अराउंड 50,000. सो यू हैव टू बी वेरी गार्डेड कि हाँ हम किनको एडवाइस कर रहे हैं, और उनको हम बताएंगे कि हम क्यों एडवाइस कर रहे हैं इसको. सपोज अगर पॉजिटिव आता है ये, तो हमें एज देखनी है पेशेंट की, और ये इसको फिर स्क्रीनिंग में, प्रॉपर स्क्रीनिंग और थरो एग्जामिनेशन में डालेंगे. इफ शी फॉल्स इनटू अ रिप्रोडक्टिव एज और स्टेज 1 में है तो हम कंजर्वेटिव जाएंगे, एंड देन व्हेन शी कंप्लीट्स द फैमिली देन वी विल अप्लाई अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हर. और अगर पॉजिटिव है और फैमिली कंप्लीट करी है तो हम उसको फिर मैस्टेक्टमी और यूट्रस रिमूवल या ओवरी रिमूवल, ट्यूब रिमूवल, इन सब के प्रोसीजर्स का इंडिविजुअलाइज करेंगे. हर पेशेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये हमें अप्लाई करना चाहिए. तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेका जीन. Okay, and that's a simple blood test, but yes. But affordability becomes a bigger issue for Indian citizens. Yes. All right, but its accuracy is quite good. Is it that? Yes, no. Accuracy is like, it is not 100%. That if you are getting a mutated gene, that does not mean you are 100% guaranteed to have CA ovary or CA breast. But you are falling into a high risk category, that is जो मैंने बताया 20 to 40%. So यही चीज ये एंजेलिना जोली, everybody knows कि हाँ she was falling into a risk category. That does not mean that was sure that she will have these kinds of cancer, but she went for that. तो इसलिए हमें यही बताना पड़ेगा कि ये अगर पॉजिटिव आता है तो हमें ये करना पड़ेगा. इफ अगर पेशेंट पहले ही बोलेगा कि हम नहीं करवाएंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग फॉर सच अ एक्सपेंसिव टेस्ट. Correct, ma'am. So that brings us to, ma'am, tell us some tips and advices how we can prevent this ovarian carcinoma. Is there anything we need to keep in mind? Yes, we can. First thing जो मैंने रिस्क फैक्टर बताया था कि अनावरत ओव्यूलेशन जो हम बोल रहे हैं कि बार बार ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसको चाइल्ड बेयरिंग के टाइम पे जब पेशेंट प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो स्टॉप करता है. तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव फैक्टर. तो अगर कहते हैं कि 1 या 2 चाइल्ड है तो वो 30% रिड्यूस हो जाता है, 3 या 4 है तो वो अराउंड 60% रिड्यूस हो जाता है. और ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर अलॉन्ग विद दैट ब्रेस्ट फीडिंग है तो इट एड्स अप अराउंड 24% reduction in the chances of CA breast.
फिर हम कीमो प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो अगर ऐसी हाई रिस्क है पेशेंट तो हमें हमेशा उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी है। ओरल Okay. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहती हैं वो रिडक्शन करती है 50% अप टू 5 years। और Okay. उससे भी अच्छी बात ये रहती है कि इसको स्टॉप करने के बाद भी ये जो कीमो प्रिवेंशन का इफेक्ट रहता है दैट लास्ट फॉर अराउंड 10 years। That's very सो good. हाँ, सो ये दो जो मेथड्स हैं दे आर क्वाइट इजी। और जो लास्ट वाले मेथड्स जो मैं बता रही हूँ वो थोड़े से डेफिनेटिव है। वी शुड ऑफर सर्जिकल स्टरलाइजेशन, ट्यूबेक्टमी, सैल्पिंजोफ्रेक्टमी, ये सारी चीज, हिस्टेरेक्टमी, ये सारी चीजें हम ऑफर कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर 100% श्योर दैट यू विल नॉट हैव सीए ओवरी आफ्टर दैट। Right. But हाँ, 90 to 95% we can prevent the occurrence of CA ovary. So, with your words, I can understand one thing which will be useful for our viewers कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, you have one half of the battle. That is one thing Yes, which is in your hand. So, especially for the mothers who are working these days and जिनके पास टाइम की कमी है, please encourage yourself, अपनी हिम्मत बढ़ाएं और ब्रेस्ट फीडिंग करें बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स एंड मेनी डिजीजेस आई फील ब्रेस्ट फीडिंग yes. डज क्योर. So yeah, so that's a very good point. My next question is for Dr. Shushruta. Ma'am, if Yeah. yearly CA 125 और TVS एडवाइस करा जाए, एज फॉर से आपने 35 बोला और 40 अगर लेके चले एक एवरेज एज ग्रुप इंडियन विमेन में, और अगर CA 125 और TVS कराए, वोंट इट बी अ गुड स्क्रीनिंग टूल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Yeah, it's a good question, but again the thing is same कि not for a general population again. हाँ, लेकिन high risk जो है तो definitely it will help in early pickup of any deformities जो grow कर रही है, क्योंकि CA 125 भी जैसे आप जानते हो, आपने बोला भी, it's a not a perfect marker for ovarian cancer, वो भी कई सारे disease में बढ़ता राइट. है ना? तो best is a combination of these two, and in a high risk patient definitely yes, it will help in picking up any kind of tumor early, and again in a early stage if it is detected then it will help in a good cure rate also. Okay. Ma'am, it's usually said worldwide कि you're right that there is no screening protocol for this, and आप Yeah, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि CA 125 TVS will be a good combination. However, like sonography बोलते हैं एक women की, तो sonography is quite yeah, useful, it's pain free. अगर 2 बिल्कुल. years 3 years में अगर एक लेडी अपने आप को एक सोच ले, ओके दिस इज माय बर्थडे एंड इट्स माय रेजिमेन कि मेरे को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कराना है, नॉट एंड नॉट वेट फॉर द सिम्टम्स, व्हाट डू यू थिंक दैट इज अ हेल्पफुल टूल नहीं फॉर तो ऑल दी वुमेन 40 अप? सी देखिए, अगर वो कराना चाहती है तो डेफिनेटली शी कैन गो विद द सोनोग्राफी, क्योंकि सोनोग्राफी में भी सोनोग्राफी इज द बेस्ट टूल to identify. जैसे आप as a sonologist you can tell कि there are different types of classification that can differentiate Yes. a benign tumor and a Yes. malignant one, जैसे iota classification and all. जी. तो it's really a good tool जो अल्ट्रासाउंड है. I think this is आज की डेट में तो अल्ट्रासाउंड इतना अच्छा, इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं उसमें कि बहुत ही 3D वे में भी बताते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So with that we can definitely differentiate between a benign one and a malignant one. So this will help. Okay. Ma'am, Dr. Nidhi ma'am, what's your take on this? Will sonography will be a useful tool for Indian women if they make it a protocol for themselves, especially post-menopausal? They don't know what's Yes, happening because they exactly. are not having the cycles. और बहुत सारे कैंसर्स में हम पढ़ते हैं कि आप एडवाइस करिए इफ द फीमेल इज 35+ और रीचिंग 40 यू शुड एडवाइस बेसलाइन यूएसजी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीए ओवरी ओनली. Yes. तो अगर हम बेसलाइन यूएसजी करवाते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है एंड वी हैव मेनी थिंग्स इन आवर हैंड इन. सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग एडवाइस करते ही हैं कि इफ यू आर एट द एज ऑफ 35 और अबव यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 1 स्कैन.
नॉट Right. कि हम बोले कि हर साल कराइए, बट स्टिल इट विल डेफिनेटली बी अ वेरी हेल्पफुल टूल. आई मीन फ्रॉम आवर साइड एज अ क्लिनिशियंस वी शुड टेक अ स्टेप to identify these cancers which have a heavy burden on the women. करेक्ट, बिकॉज लाइक वी ऑल डिस्कस राइट नाउ, ओवेरियन कैंसर के बहुत साइलेंट फीचर्स होते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में सोनोग्राफी, बेस टाइम सोनोग्राफी इज क्वाइट यूजफुल. लाइक मैम सेड, आयोटा क्लासिफिकेशन, दैट इज इंटरनेशनल ट्यूमर ओवेरियन एनालिसिस क्लासिफिकेशन. दे हैव अ मॉडल जिसमें आप बिनाइन सिस्ट टाइप के लीजन्स ओवेरियन कैंसर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर डिफरेंशिएट नहीं भी हो पा रहे तो एक आपको सस्पिशियस लीजन की कैटेगरी में डाला जाता है जिसके फॉलो अप्स अलग होते हैं. सो आई पर्सनली फील that we have seen lot of women, especially Indian women, who ignore their health and वो symptoms का वेट करती हैं कि अब मुझे दर्द होना शुरू हो गया है और अब वो सही नहीं हो रहा है दवाई खाकर अपने आप सेल्फ मेडिकेटेड, तो अब मैं डॉक्टर के पास चलूं. वो ना करके आप ईयरली नहीं तो 2 years में वंस एक प्रोटोकॉल बनाए अपने लिए एंड गेट योरसेल्फ स्क्रीन. अगर आप फुल लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट सब नहीं करा सकते, एटलीस्ट एक सोनोग्राफी कराएं, so that you know structurally आपकी बॉडी में सब ठीक है कि नहीं. That way you can catch all these diseases very early, and then ovarian cancer जैसा disease एक silent killer नहीं कहलाएगा क्योंकि आप जल्दी डिटेक्ट कर लोगे इन चीजों को. Right. So next, ma'am, it's for Dr. Nidhi Pathak. Ma'am, what is the importance of age in ovarian cancer? Yes, I'll start with the explanation of Dr. सुश्रुता. जो ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने, तो ये जो सीए ओवरी है बड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करता है. तो अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो लाइनिंग रहती है, एक एपिथेलियम, फिर स्ट्रोमा रहता है और फिर जर्म सेल्स रहते हैं. Okay. तो हर जो कंपोनेंट है वो अगर म्यूटेट हो रहा है, कैंसर सेल्स में कर रहा है, तो वो हर कंपोनेंट डिफरेंट एज में प्रेजेंट करेगा. तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जर्म सेल, तो जर्म सेल जो रहता है ये बहुत अर्ली एज, लेस देन 20 years में प्रेजेंट करने लगता है. एंड यूजुअली द गर्ल प्रेजेंट्स विद अ लंप. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दिखती हैं, बट ये यूजुअली बहुत जल्दी पकड़ाई में आ जाता है बिकॉज 90% केसेस स्टेज 1 में हो जाते हैं. एंड इट इज वेरी कीमो सेंसिटिव और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है इसका. दो मैलिग्नेंसी रेट थोड़ी ज्यादा रहती है बट दे आर क्वाइट क्यूरेबल. फिर अगर हम स्ट्रोमल सेल्स के बाद जाए, स्ट्रोमल सेल्स के पास, तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स होते हैं इसमें. तो ये जुवेनाइल और एडल्ट दोनों उसमें होते हैं. ये भी ज्यादातर स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाते हैं और यूजुअली यूनिलैटरल रहते हैं. तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी कंजर्व करके हम उसको यूनिलैटरल सैल्पेंजोफ्रेक्टमी, मतलब ट्यूब और ओवरी रिमूव करवा के उसको एक हेल्दी लाइफ और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हैं. मैम जुवेनाइल से मतलब क्या एज ग्रुप आप सजेस्ट कर रहे हैं? जुवेनाइल मीन्स प्यूबर्टल एज एंड एडल्ट इज लाइक 20 वाला, 20-25 ऐसा वाला. ये जो लास्ट, हाँ, यस, अराउंड 12-13 यस, years. हाँ. तो ये रेयर रहते हैं इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते. जो मोस्ट कॉमन रहते हैं that is on the from the outer lining, that is epithelial cell carcinoma जो रहते हैं, वो एकदम लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं. जो 60, 70, 56 years बोलते हैं एवरेज. अगर हम पूछे तो 56 years के अराउंड प्रेजेंट करते हैं ये. तो ये उनमें आते हैं जिसमें 90% हम बोल रहे हैं जो 3rd स्टेज या 4th स्टेज में डायग्नोस होते हैं, बिकॉज इनके सिम्टम्स ज्यादा होते नहीं है इस वजह से. तो ये एज का वो है. फिर अगर हम पोस्ट मीनोपॉजल की तरफ जाएं तो पोस्ट मीनोपॉजल में ज्यादा दिखेंगे और मेलिग्नेंसी की रेट रिलेटिवली पोस्ट मीनोपॉजल में ज्यादा होती है. तो दिस इज ऑल की एज का और कैंसर्स का, ओवरी कैंसर्स का कैसे हम क्लासिफाई करें, तो ये है ऐसा. So you mean to say the curve is increasing, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे chances of or percentage of ovarian carcinoma is more. Definitely. Okay. All right. Now I think I had shortlisted a few questions and we've tried to answer all of them. So ma'am, just a quick take home message from both of you. Dr. Sushruta, let's start with you. What would you advise our viewers to take care about ovarian cancer? See, take home message तो basically यही है कि you have to be vigilant about your health.
Right. कोई भी छोटा मोटा सिम्टम कभी ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको है, ओके, डेफिनेटली, जरूरी नहीं, जैसे हमारे कई पेशेंट बड़े दुखी भी हो जाते हैं कि अच्छा तो मुझे ये तो हो रहा है लेकिन कुछ निकला नहीं, मतलब जैसे आप अल्ट्रासाउंड करा लो, True. कुछ तो आया नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं आया, इट्स अ गुड थिंग, Good thing. एटलीस्ट यू हैव गिवन अ थॉट ऑन योर हेल्थ। तो Good. दैट इज द बेस्ट मैसेज कि प्लीज डोंट इग्नोर इवन अ स्मॉल सिम्टम। अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो जस्ट मीट योर डॉक्टर। नहीं निकला तो बहुत अच्छी बात, निकल गया तो वी विल क्योर। So this is the message I want to give. Thank you, ma'am. Dr. Nidhi, ma'am, what's your take-home message? टेक होम मैं यही बोलूंगी कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पेशेंट्स एक बार हम लोगों को बता देना चाहिए उनके। और जैसे डॉक्टर सुश्रुता ने समराइज किया था कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स, इवन आई हैव सीन पेशेंट टिपिकली कंप्लेन ऑफ द गैस्ट्रिक सिम्टम्स। वो बताते हैं हमें कि ब्लैडर हैबिट्स या बोवल हैबिट्स स्पेशली चेंज हो रहे हैं। तो आई हैव सीन, मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर उनसे पूछेंगे हम कि महीने में कितनी बार हो रहा है, एंड इफ इट इज लाइक आई हैव रेड इन सम बुक्स आल्सो कि अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं 12 to 13 टाइम्स हो रहा है, देन यू शुड हैव अ हाई सस्पेशन। तो दिस इज प्रिवेंट, एंड वी शुड आल्सो फोकस ऑन द हाई रिस्क ग्रुप्स। उनको जरूर हमें आइडेंटिफाई करके और स्क्रीनिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो considering the burden of women, on such a big health burden on women, we should always, as a clinicians, we should classify the high risk groups and educate the patients. Correct. I think we had a fabulous talk, and my take-home message from this talk, a summary, is three things we should keep in mind. First and foremost, अभी तक एक स्क्रीनिंग टूल, एक मेथोडोलॉजी नहीं बनी है अपने इंडियन मेडिकल साइंस में कि एक ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. सो दैट इज वन पॉइंट वी शुड फोकस ऑन, एंड वी शुड go ahead and do some research on it. जैसे कि एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की पूरी चार्टिंग बनी है कि if you're this age then do this, do this, do this, do this. So we should work on ovarian cancer too because it is kind of a fatal disease. So we should work on it. Second take home from my end will be like ma'am said, जब भी आप अपने डॉक्टर को प्रेजेंट करें, चाहे आपको माइनर से माइनर, छोटा से छोटा सिम्टम हो, आप उसको हाई रिस्क और लो रिस्क में डिवाइड करें. जब डॉक्टर्स ये कर देंगे और पेशेंट्स को पता चल जाएगा कि आई फॉल इन हाई रिस्क कैटेगरी, वो अपने आप एक रेड फ्लैग खड़ा हो जाएगा एंड दे विल बी स्टार्ट बीइंग मोर विजिलेंट, स्पेशली फॉर देम एंड देयर गर्ल्स एंड family to go on. So that is one thing Indian women are lacking to know about their family history. If mother is educated at the time of visit, they will try to educate their girls as well. And third is, like I told, I really feel that an ultrasound of your pelvis does make a lot of difference because it does catch a lot of small diseases also. जरूरी नहीं है कि हर disease cancer हो और जरूरी नहीं है हर cyst cancer हो, but इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको टेंशन फ्री करने के लिए, चाहे आपको सिम्टम्स है कि नहीं, एक ईयरली और 2 yearly इवैल्यूएशन इज अ गुड हैबिट आफ्टर 35 years of age. So I think that is how I would like to end our talk on ovarian cancer. And I thank Dr. Sushruta and Dr. Nidhi Pathak for joining us on Cura Talks. It was a great discussion, and I hope हमारे viewers को इससे कुछ लाभ मिला हो. And this will be present on our IGTV as well as on our YouTube channel, which goes by Cura Diagnostics. You can catch us there. अगर आपके पास कोई भी questions हो हम तीनों के लिए, तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे पेज पे. We'll be happy to answer you back. We'll be back again with another interesting talk. Thank you doctors for sparing your precious time and being with us. Thank you so much.